600 पेड़ आपको 10 साल बाद 12 करोड़ रुपए देंगे। आई फेल्ड इन 50 इंटरव्यूज टू गेट माई सेकेंड जॉब। जब आपको मिल रहे होते हैं सैलरी में 10 रुपए, तो मुझे लगता है आपको काम करना चाहिए 100 रुपए का। जब आप हायर करते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ऑनरशिप। करेक्ट। तो सिखा तो मैं दूंगा, ऑनरशिप लेने वाला बंदा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरव्यू टिप सीरीज के नए वीडियो में, जहां हम एचआर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से उनकी जर्नी और स्पेशलाइज फील्ड के बारे में करियर गाइडेंस और इंटरव्यू टिप्स लेते हैं। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, और आज हमारे साथ हैं ग्लोबल एचआर हेड ऑफ 3 पिलर्स, अ यूएस बेस्ड आईटी कंपनी with 3,000 employees in 9 countries. He is also the founder of HR Success Talk, a community with 1.5 lakh HR and business leaders in 11 countries. And he also runs an NGO by the name of Amrita Devi Foundation that works for women empowerment and climate change. Please welcome Mr. Govind Negi ji. Thank you so much, sir, for accepting our invitation और यहाँ आने के लिए, and we are looking forward for this discussion. Thank you very much for inviting me. It's my pleasure to be here on this platform and talk to all your audience. I'm sure there are a variety of people, starting from those who want to build their career or maybe those who are already at the very established stage in their career. So looking forward to have that conversation. Thank you, sir. Sir, सबसे पहले ये एक कॉमन सवाल जो हम सबसे पूछते हैं about दी जर्नी, तो हम आपसे भी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल तो सेम है लेकिन इसका आंसर अलग होता है, क्योंकि हर किसी की जर्नी बिल्कुल ही अलग होती है और पीपल माइट बी गोइंग थ्रू द फेज विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड, एंड आई थिंक योर जर्नी विल डेफिनेटली इंस्पायर बिकॉज इट डेफिनेटली इंस्पायर मी, सो आई एम वेरी श्योर इट्स गोना इंस्पायर टू आवर व्यूअर्स। सो प्लीज सर, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताइए। I'll start from maybe my roots. So I belong to a district called Almora in Uttarakhand. So just to start that, my father was in army. अच्छा. And he was in Kumaon regiment. Okay. And he got retired hurt while having a war with Pakistan. Oh. And because he was retired hurt, and we were like 2 brothers and 3 sisters, and I'm sure that point in time the families were used to be bigger. Yes. My father came to Delhi at that point in time. अच्छा. I was born in Uttarakhand, but I don't have memories because I think I was very, very young when I came to Delhi. I would say it was tough because my father was the first one coming from Uttarakhand to a metro city. It was a very tough journey for him. But my father knew one thing, that if he has to invest his money, he has to invest on the education of his kids. So all 5 kids, and you can imagine somebody coming from there to a metro city with 5 kids and a wife, it is very difficult to even feed them. But he made sure that he invests on our education. And I think that is very inside me, because I know that how important it is to, have a very good education. Well, he could afford whatever he could, and I would say I was very good in study as well. After my senior secondary, which is 12th, I was very inclined towards doing my education in computers. Computers was a very new thing at that point in time. I'm talking about 1998. So computer was very new thing, and everybody wanted to do. Unfortunately, I did not had a mentor. I think today a lot of people have a lot of mentors. Like your show right now is helping a lot of people to decide what they want to do. Unfortunately, in 1998, you don't have anything like that. The only best way is you can ask your cousins. You can ask your uncles to get all your friends. Unfortunately, my cousins and uncles were also not in the position to give me that kind of advice. Now, a lot of people get surprised that a person who wanted to build his career in IT, how come you landed in HR? So the story is very simple. When I passed out in 2001, there was a IT recession at that point in time, very similar to what it is today, but it is worse than today, I would say. So it was very hard for even the established IT professionals to keep their job. So of course, there was no job for the freshers at that point in time. So I said I will take any job that comes to my way, and I got that job, first job in Khajani Group of Companies, where I started my career. Then I did my Master of Computer Application through correspondence, and then later on I did my MBA in HR.
So I started my journey with Khajani Group of Companies. I stayed with them for almost 6 years. And the last when I left, I was the chief manager of HR. But Vaibhav, one thing I realized is that it was a group company, but not a large company. So I actually grew from the entry level to the topmost position. I used to report to the chairman. I started realizing that whatever I used to say in HR field used to be the thing that is considered as final. Inside me, I knew that it is not necessary, maybe the right thing to do, because I'm not the perfect and expertise in that. So I had two choices. Either continue to be a big fish in the small pond, Right. or take a courageous decision and become a small fish in a big pond. I took a courageous decision and I changed the job. I joined a company called Dinev India Private Limited, where I started from I would say a very small level of position. But I would say that was the job that shaped me as HR today. And from there, I never looked back. Then I joined another company called Paharpur Group of Companies, where I became the head of HR. And today I work in the company called 3 Pillar Global, which is an IT company. And I'm the global head of human resources, where I manage 4 regions, Asia, North America, Latin, and Europe. So this is my whole journey. I would say a journey with a lot of learnings. I'm still learning. I would not say the learning is over. I'm still learning. I don't know where this journey will take. But the lesson from this journey, I would say, is that consistency. I think you need to also decide what's good for you as a human being, and I think the learning was the key in my view when you go through the whole journey of mine. So that will be my message, and this is my journey so far. Thank you so much, sir. It's an amazing journey, and how you grew from that level to a head HR managing, multiple countries. And I'm sure it's gonna give courage and inspire our viewers that if they follow with consistency, they will definitely gonna reach where they want it. Absolutely. or where they want to reach. सर थोड़ा सा हमें HR सक्सेस टॉक के बारे में बताइए कि कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, और कैसे आपने एक कम्युनिटी बिल्ड की जहाँ पे, if I'm not wrong, there are 1.5 lakh members. Yeah. members. So this is amazing. This is huge. So please tell us a bit about HR success. Yeah, sure. जैसे मैं भी अपनी जर्नी के बारे में बता रहा था आपको, my first job was with Khajani Groups. Because I was not from a HR background, I was from an IT background who actually started his career in HR. What happened is that when I wanted to change from a big fish in a small pond to a small fish in a big pond, of course I need to change the job. You won't believe that many people think that I'm exaggerating that thing, but I failed in 50 interviews. 50. 50 interviews. I failed in 50 interviews to get my second job. Why? Because that point in time in HR you need to know labor laws very well. आज के दिन लेबर लॉज को कोई नहीं पूछता है. उस टाइम पर अगर आपको लेबर लॉज नहीं आते तो आप HR के बंदे नहीं हो बेसिकली. Because I did not did my formal education in HR, I was an IT person. I did not know much about labor laws. उस टाइम वैभव गूगल भी नहीं हुआ करता. ठीक है, वो याहू मैसेंजर जमाने थे और गूगल वगैरह भी ज्यादा कुछ था नहीं उस वक्त. तो आप स्टडी भी नहीं कर सकते थे. आज तो बहुत कुछ अवेलेबल है. YouTube, Google, ChatGPT, a lot of stuff are there. उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं था. तो only option left is that you find somebody who knows those labor laws and statutory compliance and get educated about it. तो जिस इंटरव्यू में मैं जाता था वो मुझसे लेबर लॉज के क्वेश्चन पूछते थे और मुझे वो लेबर लॉज के आंसर्स आते नहीं थे. तो आई रीच्ड आउट टू मेनी पीपल एंड आई आस्क्ड देम कि भैया मुझे लेबर लॉ सिखा दो. शायद उस टाइम पे ऐसा मेंटेलिटी होता था कि आप जिसको जानते हो उसको आपको किसी को सिखाना नहीं चाहिए. ये उस टाइम का मेंटेलिटी था. आज के शायद लोग इस बात को समझ ना पाए, but that's why I'm trying to give you the context behind कि क्या चल रहा था.
But still I tried keep giving interviews, fail होता रहा 50 I'm telling you, मैं मतलब उसको कहते हैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ अगर मैं संस्कृत की बात करूँ तो I'm saying what actually the case was. Finally एक कंपनी थी JK टायर्स, कोई था जो JK टायर में था, उसने बोला गोविंद मुझे पता है कि आप बहुत डेस्परेटली यू आर लुकिंग फॉर लर्निंग दिस, मैं आपको किसी कंपनी है एक बाबू है उनसे मिलाता हूँ, वो ये संभालते हैं, वो आपको सिखा देंगे। मैं कहा बढ़िया है। सो आई वेंट, दैट कंपनी वाज इन फरीदाबाद, सो आई वेंट देयर। और मुझे आज तक वो रूम याद है, और मेरी मेमोरी बहुत खराब है इन सब चीजों में, बट मुझे वो रूम आज तक याद है। आई वेंट इनटू दैट, इट वाज फुल ऑफ फाइल्स, एंड एक छोटे से बाबूजी बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे आज भी याद नहीं क्या सिखाया मुझे, उन्होंने सिखाया मुझको कि देखो ESI में ऐसा होता है, ऐसे लोग ESI में फॉल करते हैं, PF में ऐसा होता है। अब आप इसको शेयर लग कह लो वैभव, नेक्स्ट डे आई गॉट अ जॉब ऑफर, और उस जॉब ऑफर में किसी ने मुझसे पूछा नहीं स्टेट कंप्लायंस के बारे में, बट आई गॉट द जॉब ऑफर। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी, बिकॉज दिस स्टोरी इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग HR सक्सेस। आई गॉट माई सेकेंड जॉब, बट देन थर्ड जॉब, बट कहीं ना कहीं वैभव इनसाइड मी आई ऑलवेज फेल्ट कि लोगों को क्या प्रॉब्लम थी मुझे सिखाने में। करेक्ट, मतलब ऐसा क्या हो जाता कि अगर अपना ज्ञान बांट देते तो दैट वाज इनसाइड मी अ लॉट। When I became a head of the HR and I had some time to spread in my free time, one day I spoke to my brother. He's in IT, and I said, I have some time and I want to do something. तो उसने पूछा, what is that you want to do? And I told him the story and I said, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि लोग दूसरे को सिखाना नहीं चाहते। I think people should be open to share. तो उसने बोला, are you open to share? Are you going to start first thing? I said, yeah, I think I want to start. So he said, well, then you have your answer. In your free time, why don't you start teaching people, sharing your knowledge? I said, okay, let me do this. मतलब मुझे पहले अपने से शुरू करना चाहिए। So Vaibhav, and then I said, how do I do that? He said, in Google, I didn't know about it. He said, in Google, there is an option called blogging. So you can start by writing your blogs. तो blogs होता क्या है? He explained me what is blogs. So I said, fine. कौन सी ईयर की बात है? ये होगा आज 12 साल हो गए इस बात को, इस 12 years। तो ये 12 साल HR सक्सेस टॉक को 12 साल हो चुके हैं। वी आर इन 13th year, तो 12 साल पुरानी बात है। तो वैभव, आई स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट ब्लॉग। माय फर्स्ट ब्लॉग वाज ग्रेच्युटी एक्ट इन इंडिया। सी because nobody told me about labor laws, so I started teaching labor laws to people, and my first blog was gratuity act in India. That was super duper hit. अच्छा, मतलब आज भी अगर आप उस ब्लॉग को देखोगे तो उसमें लाखों कमेंट्स हैं, एंड माय हैबिट वाज दैट आई यूज्ड टू रिप्लाई टू एवरी कमेंट। तो वन डे इट वाज सो बिग हिट कि वो गूगल में ऑर्गेनिक ग्रेजुएटी लिखो तो फर्स्ट माय नेम यूज्ड टू कम, एंड देन आई डिड लॉट ऑफ अदर ब्लॉग्स ऑन सब्सक्रिप्ट ब्लॉग। तो मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा भाई ये तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है टू रिप्लाई टू एवरी। ही सेड, व्हाई डोंट यू कम टू अ स्केलेबल मॉडल, यू मेक अ फॉरम आउट ऑफ इट, जहां आप रिप्लाई नहीं कर रहे, but lot of other HR professionals also coming and reply. So I built the HR forum. Cut story long, short, from that till today, मुझे नहीं पता कैसे कैसे होता रहा, but today we are a community which is in 11 countries. It is the first Indian HR community which is in 11 countries. We have maximum base in India. मैं कभी तो कंट्री के नाम भी भूल जाता हूँ, but just to tell you that we are India, UAE, Saudi Arabia, Ghana, Philippines, Canada, US, UK, Mauritius. As I said, I normally forget the names of the country that I have. We have set up. It's very proud that an Indian community can go to those many countries, and 1.5 lakh members. But I want to tell you that if you look at the tagline of the HR Success Story, it says, "Let's share and learn together." जी, that's the story of why HR Success Talk has become today also. If you look at our vision, is always about that. We want to be a global platform. We are a global platform where we want to bring HR and business leaders together to talk about talent-related problems in the business and solve them and share back those solutions to the world. Very similar to what you do, Vaibhav. Like this conversation we are doing today, I'm sure all the listeners will get to learn from that. Absolutely. I think
हमारे जमाने में ऐसा प्लेटफॉर्म कोई होता तो शायद मैं भी अपने डिसीजन कुछ लाइफ में लेता. Although I'm very happy with where I am today, but maybe I must have taken a different decision. So this is the story of HR Success Talk. Very similar to what you do. We also share and learn things with others. आज भी कर रहे हैं, करते रहेंगे. अभी तो 12 साल हुए. I think it will go to a long way. But I think the way we are different from others are two things. One, we have consistency in what we do. Second, we have a power of team. We have 150 volunteers across the globe. मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, CHRO से लेकर फ्रेशर तक, who are part of this. और आपको जान के बड़ा खुशी भी होगी और सरप्राइज भी होगा कि चाहे हम कम्युनिटी हैं, बट वी वर्क लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन. हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें वी हैव लाइक फाउंडर, ग्लोबल CEO, एडवाइजर्स, ग्लोबल presidents, we have country heads, state presidents, vice presidents in city, managers, etc. पूरे 150 लोग हैं जिस पर काम करते हैं बेसिकली, और ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं. बिकॉज यू कांट मैनेज अ कम्युनिटी which does so many things in 11 countries with so many members without like one person, right? So I am also a volunteer. It's not that, so I have a role to play. My role is a global CEO. Somebody else is a volunteer, they might have a different role, but everybody is a volunteer. We have our job to do. Same time we find out 3 to 4 hours in a week to give back to the community. This makes us different from other communities, I would say. Wow, sir. So sir, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाई. इस तरह की चीज को क्रिएट करना, अगर आप देखिए कि इट्स वेरी टफ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन with people, paid people, to create such thing, and what you have created is without any investment from outside, without any paid employee. And this model, इसके 1.5 लाख लोग member हैं, HRs हैं, and what you have created is huge. And congratulations and all the best. And मुझे इसलिए भी खुशी है क्योंकि हम भी वैसा ही कुछ करना चाह रहे हैं. That we have created more than 100 videos where on resume writing, interview preparation, how to do job search. बहुत सारे head HRs आए, उन्होंने अपना knowledge और journey share किया, और सबसे मिलने और उनकी success story हो या उनकी journey सुनने से बहुत हिम्मत मिलती है. मुझे खुद भी बहुत हिम्मत मिलती है जब आपने बताया कि आपने वो शुरू किया, और मुझे भी लगता है कि शायद हम भी कुछ ऐसा create कर पाएं जहाँ पे we could actually help people for free, and and could be a part of their journey, and we could cheer for them while they are getting what they really wanted. Yeah, and well, I think you touched upon a topic, so I wanted to talk about it. Sometimes people ask me, how do you do that? जी. Like, and you correctly said कि एक छोटी अपने आप में एक कंपनी है बेसिकली. तो 150 लोग एक कंपनी होती है, स्टार्टअप आप SME कह सकते हो उसको. बिल्कुल. And these 150 लोग जो पेड होते हैं उनको संभालना इतना मुश्किल होता है. How come people are not taking even money to do what that is? And my answer to that is, I think everybody has very different. So what's in it for you is always there. जी. आप या तो पैसे लोगे या कुछ तो आप लोगे जिससे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो. तो जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, they when they join us, they actually get a lot of things in return. It might not be money, but what is it? It could be personal branding that you get out of this community while you're volunteering. It could be that you get to know how to work with professionals. हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स जो हैं, जैसे वो लाइक अभी उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की है HR के अंदर, किसी भी फील्ड जोड़ी नहीं कि HR के लोग भी वॉलंटियर होंगे, मार्केटिंग में भी. दे टोल्ड मी व्हेन आई आस्क्ड देम, यार आपको 1 साल हो गया, व्हाट इज दैट यू गॉट आउट ऑफ इट? ही सेड यू विल नॉट इवन बिलीव, जो हमें आज तक कहीं भी नहीं मिल सकता था वो यहाँ से मिल गया, बिकॉज वी नो हाउ टू ऑर्गेनाइज अ वीडियो कॉल. वी नो जब कोई इवेंट होता है तो वी नो हाउ टू इवन हैंडल अ कैमरा. वी नो हाउ टू इवन टॉक टू अ CHRO in a better way. How to draft an email and send to them. Now these are the things which helps them in their career when in the real job they do. बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है हमारी कम्युनिटी से. Right. So for example, if I know some volunteers and they are very good. देखिए जब भी आप हायर करते हैं, आप भी और बिजनेसमैन हो, राइट? जब आप हायर करते हैं आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ऑनरशिप. करेक्ट. तो सिखा तो मैं दूंगा, ऑनरशिप लेने वाला बंदा होना चाहिए. एंटरप्रेन्योर का प्रॉब्लम क्या है? लोगों को काम तो करते हैं नहीं, फिर फॉलो अप करोगे तो हमें ही फॉलो अप करना है तो फायदा क्या है? बट इफ यू फाइंड समबडी हु टेक्स ऑनरशिप, यू आर लाइक डन. अब मुझे पता है मेरा वॉलंटियर ऑनरशिप लेता है, सो व्हेन आई हैव अ जॉब इन माय कंपनी, इफ यू हैव अ जॉब इन योर कंपनी, आई विल रिकमेंड. बिल्कुल. क्या ये ऑनरशिप लेते हैं?
लॉट ऑफ पीपल गेट लॉट ऑफ बिजनेस आउट ऑफ, बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हमारे कम्युनिटी के पार्ट है, तो पीपल गेट समथिंग आउट ऑफ इट फॉर श्योर. इट माइट नॉट बी अ सैलरी और समथिंग, बट दे गेट समथिंग इन रिटर्न. तो आई वांटेड टू टेल यू दैट ये कम्युनिटी लोग एक पर्पस और पैशन के लिए इसके साथ जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि ये हमेशा जुड़े रहेंगे और इट विल गो फॉर अ लॉन्ग. ग्रेट. तो सर आई वुड जस्ट एक पॉइंट हो सकता है कि व्यूअर्स उस चीज को मिस कर गए हों जो मैं स्पेशली नोटिस मैंने की, और मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि इफ यू रियली वांट टू, देखिए आजकल हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिएट करने की बात करता है, बट जैसे मैंने भी जॉब की बहुत लंबे टाइम तक, आपने जॉब करते करते क्रिएट की, एंड देयर इज अ जर्नी दैट वी ऑल विल गो थ्रू. बट व्हेनेवर इन व्हाटएवर कैपेसिटी वी आर वर्किंग, मैं इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ जो आपने हाईलाइट किया. टेकिंग ओनरशिप ऑफ व्हाटएवर वर्क इज असाइन्ड टू यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. इफ यू आर वर्किंग, टेक इट एज योर ओन वर्क, योर ओन बिजनेस, व्हाटएवर योर रोल यू आर इनटू. तो अगर कोई वॉलेंटियर है, अगर कोई आपके साथ जुड़ा है, तो कोई बिना पैसे लिए अगर वो इस तरह से काम कर रहा है, तो आप उसको कहीं ना कहीं तो उसको मालूम है ना उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहीं है. तो अगर किसी एम्प्लॉय को, जो कि मैं स्पेशली आजकल जल्दी या बहुत इंस्टाग्राम और रोल पे लोग बोलते हैं, कहते हैं यू पे मी दिस आई विल वर्क दिस, करेक्ट है ना भाई, इतनी सैलरी देते हो तो इतना ही काम करेंगे, दिस इज नॉट माई वर्क, अपना ऐसा कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि वो शायद पहले के जमाने से यहाँ की उसमें जो थोड़ा सा मैं शिफ्ट देख रहा हूँ, और इसीलिए हम हेड एचआर्स और आप जैसे और हम एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं. और मैंने सबसे सर एक चीज ये जरूर देखी है, मैंने हमेशा देखा है कि पीपल आर हु हैव डन वेल हैव ऑलवेज बीन फोकस्ड दैट दिस इज माय वर्क. वो ओनरशिप उन्होंने हमेशा की. मैं आपके ऑडियंस के बात बोलना चाहूँगा, जो मैं मोस्टली अपने अमृता देवी फाउंडेशन के जो उत्तराखंड के डिजिटल मार्केटिंग के बच्चों को बोलता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि हर किसी को देखो लाइफ में पढ़ना है ना, आपको ही बढ़ना है, मुझे ही बढ़ना है, हर किसी को बढ़ना होता है. अगर आप किसी फ्रेशर से बात करो ना, उसको बोलना है जल्दी पैसा कमाना. मैं उनको इस तरह समझाता हूँ कि देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपको मिल रहे होते हैं सैलरी में 10 रुपए, तो मुझे लगता है आपको काम करना चाहिए 100 रुपए का. अगर आपको कोई 10 रुपए सैलरी दे रहा है ना, तो आप 100 रुपए का काम करो. होता क्या है, जब आपको कोई 100 रुपए दे रहा होता है ना, आप काम करते हो 10 रुपए का, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको 110 रुपए भी देगा. क्यों देगा आपको? देखिए बड़ा सिंपल लॉजिक. अगर वैभव मुझे 10 रुपए देता है और मैं वैभव को काम दे देता हूं 100 रुपए का, क्या वैभव भी तो समझेंगे ना कि गोविंद की वैल्यू है 100 रुपए की. कल को मैं वैभव से कहता हूं वैभव मुझे 50 रुपए चाहिए, वैभव मुझे खुश होकर, उसे पता है इसकी वैल्यू है. अब उल्टा समझो, वैभव मुझे देते हैं 100 रुपए और मैं ऑनरशिप लेता नहीं हूं. वैभव मुझे फॉलो करते रहते हैं, यार गोविंद ये कर दिया, हाँ ये कर बोल, यार मुझे फॉलो भी करना है आपसे, तो मैं कुछ ऐसा बंदा ढूंढूं जो बिना उसके करे. तो मैं काम दे रहा हूं आपको 10 रुपए का, कल को मैं आपके पास आके बोलूंगा मुझे वैभव 50 रुपए दे दोगे, यार गोविंद तुम्हें 10 रुपए का काम तो करते नहीं हो तो तुमको मैं 50 रुपए क्यों दूं. तो मैं सबको ये मैसेज देता हूं कि देखिए जब आप अपने करियर के स्टार्टिंग में, आपके बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो अभी अपने करियर के स्टार्टिंग में है, अगर आपको कोई जो भी पैसा देता हो सैलरी में, वो मत देखो जी, उनको शो करो व्हाट वैल्यू यू कैन पुट ऑन द टेबल. और इसमें एग्जांपल दूंगा कि हमारे अमृता देवी फाउंडेशन में एक अमृता देवी फाउंडेशन के अंदर सैलरीड लोग हैं बेसिकली. सो वी हैव वॉलंटियर्स आल्सो एंड सैलरीड पीपल आल्सो. तो एक लेडी थी, शी स्टार्टेड विद एक्स मनी, शी हैज ब्लॉन अवे विद हर ऑनरशिप टू मी, ब्लॉन अवे. मतलब उसको ए बोलो, वो बी सी डी भी करके आपको दे देती. वाओ. इन 3 months her salary was double. 3 months double. Never she asked, but we knew what she deserved. she will go somewhere else, she might get double salary, so better you make her stop. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके मैनेजर्स होते हैं या बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो बेवकूफ नहीं होते, वो समझ जाते हैं. बेवकूफ आप होते हो जब आप ये सोचते हो कि यार मैं 10 रुपए के काम है तो मैं 10 रुपए का काम ही करूंगा. नहीं यार, 100 रुपए का काम करके दिखाओ तो उसे आपके अंदर क्या है. तो दैट इज माई मैसेज टू योर ऑडियंस कि यार जो आपने बोला ना ऑनरशिप, आप ऑनरशिप दिखाइए, आप प्रोएक्टिवनेस दिखाइए, आप दिखाइए कि आप कुछ कर सकते हैं. तो आई थिंक दैट दे विल लर्न एंड दैट
that is +1 to your point that honestly नहीं point. 100% एग्री। सुनील श्रीवास्तव जी आए थे इस पॉडकास्ट पे, एक्स जीएफएल है और कंप्लायंस और उसमें बहुत टाइम तक उन्होंने काम किया था। तो वो मुझसे मिलते थे तो मजाकिया तौर में ऐसे बोलते थे कि वैभव काम ऐसा करो कि तुम्हारा बॉस बिना तुम्हारे डिसेबल हो जाए। I agree. 100%. मतलब वो तो थोड़े बनारसी हैं तो इस तरह में वो हिंदी अपनी ही भाषा में बोलते थे कि ऐसा काम करो कि बॉस जो है तुम्हारे बिना जो है डिसेबल, ये सोच के करोगे कि पैसा कितना है, वो उसने क्या कहा, वो क्या करना है, सिर्फ तुम ये करके देखो, उसके बाद तुमको अपने आप वो चीज मिलेगी। एंड आई थिंक सर दिस वर्क्स वेल इन एवरीथिंग, मतलब एज अ कंसल्टेंट, एज अ एडवाइजर किसी भी चीज में, चाहे वो मेरा क्लाइंट हो, अगर मैं ये सोच के उसको सर्व करने लगा कि उसने मेरे को इतने रुपए दिए ये करने, तो फिर मैं किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं चलूंगा। जैसे अभी हम वो ट्रेनिंग वाला वो दिखा रहे थे, वी डोंट थिंक एंड फोकस कि हमें क्या वहां से मिल रहा है, वी जस्ट ट्राई आवर बेस्ट। चाहे उसको हम ट्रेनिंग वाले प्रोजेक्ट का वो काम हो, चाहे कंसल्टिंग वाले, चाहे हायरिंग वाले या सॉफ्टवेयर वाले में, आई थिंक वो जो उनकी बात है वो मैं पकड़ के बैठा रहता हूँ ये सोच के कि आपको अगर वो, मुझे लगता है चाहे बॉस मिला है चाहे क्लाइंट मिला है कुछ भी मिला है, उसको इस तरह की सर्विस देनी है, इस तरह का वो काम करना है कि वो लगे कि यार बिना इसके क्या होगा। तभी तो सर वो मजा है, तभी तो वो फिर आपको रोकेगा। वरना आप रिजाइन करो और फिर अगले दिन वो बोलेगा ठीक है कोई बात आपने इंप्रेशन ही क्रिएट नहीं किया, वो इंप्रेशन ही क्रिएट नहीं किया। So sir, I think that's a great message, through your, journey, your input. After your journey and success talk, we would want to talk about the foundation जो आपने बात किया अमृता देवी फाउंडेशन में। उससे पहले एक चीज मैं अपने आपके पिछले वाले आंसर के साथ, एक क्वेश्चन मेरा था कि जो आपने बात किया लर्निंग के जो वॉलंटियर्स हैं, अगर कोई ऐसे एचआर जो अभी they have young just started, और आपके साथ if they want to reach out to you as a volunteer, how to contact you to if they want to become a volunteer? Yeah, and that's a good question, Vaibhav. So basically, we have a HR department. As I said, we work like an organization. We have a HR department who is also responsible for identifying and recruiting and onboarding. So it's a very proper process. बहुत तरीके हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.hrsuccesstalk.com is our website, और you can find us on with the same name on our social media. Okay. तो वहाँ पर कहीं पर भी आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो there is an option says team and you can apply to be a volunteer and our HR team will call you, और वो समझना चाहते हैं आपसे कि आप वॉलंटियर बनना क्यों चाहते हैं। It's not that कि आपने अप्लाई किया तो will take you. We just wanted to know कि आप क्यों बनना चाहते हैं। We wanted to make sure कि आप जिस पर्पज से बनना चाहते हो वो हम आपको सर्व भी कर पाए, सॉल्व कर रहे हैं कि तो अगर वो लगता है कि इट हैज टू बी विन विन, राइट? आपने भी आप भी जानते हैं कि इट कैन नॉट बी कि एक कल दूसरे का विन है तो डील कभी नहीं होगी। इट हैज टू बी विन विन, आपका भी फायदा होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए, तो इट मेक्स सेंस। तो हम जानना चाहते हैं हम आपको, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, हम डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद वी ऑलवेज हैव सम ओपन पोजीशंस, सो वी ट्राई टू पुट यू इन दोज ओपन पोजीशन, वी टेल यू कि भाई इस तरह का काम है, विल यू बी ओके। एंड वी आल्सो वांट टू टेक कंफर्मेशन कि आप हफ्ते में 3 से 4 घंटे हमें दे सकते हैं, और वी ऑलवेज मतलब हम ठोक बजा के पूछते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है ना आप सोच रहे हो कि वॉलंटियर बन गया और कुछ करना नहीं पड़ेगा। इट इज अ वेरी प्रोफेशनल कम्युनिटी। हम 3-4 घंटे बहुत अच्छे से काम करवाते हैं लोगों से, क्योंकि तभी लर्निंग है, अदरवाइज आप कुछ कर ही नहीं रहे तो लर्निंग कैसा आएगी। तो दिस इज हाउ दे कैन रीच आउट। थैंक यू सो मच सर। सो हम ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे, सो दैट पीपल कैन हु आर इंटरेस्टेड दे कैन रीच आउट। और मुझे लगता है कि वॉलंटियर बन के और जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आपने की है, इफ दे विल डिवोट दैट मच ऑफ टाइम, आई थिंक देयर विल बी इमेंस लर्निंग। थैंक यू। सो सर आफ्टर दिस गोइंग बैक, जो हम जानना चाह रहे थे, आपने अमृता देवी फाउंडेशन के बारे में बताया एंड ट्रेनिंग। सो व्हाट इज दिस फाउंडेशन, कब आपने स्टार्ट किया एंड व्हाट ऑल यू डू इन दैट? Yeah, so basically Amrita Devi is name of my mother. So I started this foundation with her. और इसका ट्रिगर बहुत सिंपल था, I'll tell you. ट्रिगर ये था that as I told you in the beginning that मैं बड़ा मतलब मैं पैदा तो अल्मोड़ा में हुआ, but I never been there, तो मेरा सारा चाइल्डहुड इधर ही था। जब कॉलेज वगैरह में थे उस टाइम पर हर गर्मियों की छुट्टी में जाया करते थे, पर जैसे ही हमने जॉब शुरू करी जाना कम हो गया। So it's a very divine feeling that has triggered this, I can tell you. So जब मैं almost 10 साल के गैप के बाद जब गांव गया, और हमारे गांव में पूजा वगैरह होती थी इसलिए आपको जाना ही होता, तो 10 साल के बाद जब जाना पड़ा
तो इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग और मुझे गूज बम्स आते थे जिसके बारे में बात करता हूँ. When I put my feet on the land, the divine feeling I got is कि गोविंद, you have always been given back to the people in metro. चाहे आपने HR सक्सेस टॉक किया, चाहे आपने अपनी जॉब किया, आपने you have always served metro. You have never done anything to your मातृभूमि. And Vaibhav, it was a very, I mean, I'm feeling goosebumps when I'm saying this. It's a very strong feeling inside me. I took this feeling for almost a year, and after that, my manager in 3Pillar one day told me that Govind, you have to have an NGO. Otherwise, you will never be able to come out of it. So my company manager told me that you need to start an NGO. And every 3 months, you should go and do the NGO work. Otherwise, you will be always in this dilemma. So I started Amrita Devi Foundation. So Amrita Devi Foundation today focuses on 2 things. One is woman empowerment, and second is climate change. We started for Uttarakhand. Our focus is still on Uttarakhand, but we do work for other cities also. Now we are working in Delhi NCR. A lot of projects we are doing in Delhi NCR. So the women work we do under our subsidiary called Amrita Devi Women Skill Development Institute. Under this, our objective is to make women independent. Now, Vaibhav, you can make women independent in many ways. The way we found is to upskill them and make them independent. So, हम computer courses कराते हैं उनको. We call it computer operator, stitching and tailoring, and digital marketing. Computer and operator and stitching के हमारे centers हैं उत्तराखंड में multiple जगहों पे. But digital marketing हमारा online course होता है. Across उत्तराखंड कोई भी join कर सकता है. अब तो हम बाहर भी करने लगे हैं. हमारी जो दूसरी विंग है, we call it Amrita Devi Earth Care. This wing works on climate change. But Vaibhav, we are not like जब हम कुछ काम करते हैं विजन के साथ करते हैं, तो अमृता देवी वुमेन स्किल डेवलपमेंट विजन यही था कि हमें कोर्स करवाना है. कोर्स कराना इज नॉट द विजन, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना इज द विजन. क्लाइमेट चेंज में भी हमारा विजन है, क्लाइमेट चेंज करना तो है, बट व्हाट आई टेल दैट हमें ऐसे क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स करने हैं मोस्टली जो कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंपैक्ट करते हो और लोगों को पैसा अर्न करने में मदद करते हो. जैसे मैंने बोला, वुमेन को एम्पावर करने के बहुत तरीके, हमने ये चूज किया. क्लाइमेट चेंज के बहुत तरीके हैं, बट हमें वो चूज करने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंप्रूव कर सके. तो भाई अगर आप मुझे बोलोगे कि गोविंद क्या आप इस नदी में प्लास्टिक निकाल दोगे, वेल दैट फॉल्स अंडर अर्थ केयर. क्लाइमेट चेंज है, वी माइट नॉट बी इंटरेस्टेड. व्हाई? बिकॉज इससे किसी को पैसा कमाई नहीं हो रही. इट्स अ वन टाइम वर्क. तो आप पूछोगे करते क्या हो फिर ऐसा जिससे माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है. वी स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड. देयर इज अ विलेज कॉल्ड घुघुती. वहां पे वी वेंट, वी टुक अ लैंड जहां हमने 600 चंदन के पेड़ लगाए. 600 चंदन के पेड़. अब लोग पूछते हैं इससे क्या होने वाला है. पहले पूछते चंदन का पेड़ ही क्यों. सिंपल सा लॉजिक है, आपने आम के पेड़ क्यों लगा दिए, आपने नीम के पेड़ क्यों लगा दिए, अमरूद के पेड़ क्यों लगा दिए, उससे तो अचार बनाते ही करते वो करते. उसका बड़ा सिंपल लॉजिक है, क्योंकि उत्तराखंड में ये सब कुछ नहीं कर सकते. वहां पे ना जंगली जानवरों का बड़ा होता है, बहुत दूर दूर खेत होते हैं, वो बर्बाद कर देंगे, वो आप कर नहीं सकते उसको. चंदन के पेड़ को कोई कुछ करता नहीं है. जंगली शुअर भी होते हैं तो वो कुछ नहीं करते उसको. पर अगर आप चंदन के पेड़ की अगर आपने इकोनॉमिक्स समझ ली, यू विल बी ब्लोन अवे. लेट मी टेल यू द इकोनॉमिक्स. 600 पेड़, एक जो पेड़ होता है चंदन का, उससे शुरू करते हैं. एक प्लांट आप लगाते हो, 5 साल उसको बहुत मेहनत चाहिए. चंदन का पेड़ अपनी खुद की एनर्जी खुद खाना नहीं बना सकता. जैसे और तो पेड़ जो फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनाते हैं ये नहीं बना सकता. अच्छा. इसको कहते हैं परजीवी पेड़. अच्छा. ये दूसरों के जड़ों से खाना बनाते हैं. तो अगर आप इसको अकेले लगा दे तो मर जाएगा. तो आपको इसके आसपास, वी कॉल दैट होस्ट प्लांट, तो आपको इसके आसपास पेड़ लगाने होते हैं, क्योंकि उसकी जड़ों से फिर ये खाना बनाता है. अपने खुद का ये खाना नहीं बना सकता. तो हमने करीब 200 होस्ट ट्री भी लगाए, पर ऐसी जगह पेड़ लगाए जहां ऑलरेडी पेड़ थे ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो. तो एक पेड़ को लगता है जी 3 साल. तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. 3 साल से 5 साल कम मेहनत करनी पड़ती है. 5 साल के बाद तो पेड़ इतना हो जाता है कि आपको उससे मेहनत करने की जरूरत नहीं है. अब समझिए, अब नंबर्स. 5 साल के बाद उस पेड़ की टहनी और पत्तों को बेच के आप एक पेड़ से 5,000 रुपए कमा सकते हैं.
एक पेड़ से 5,000 कमा सकते हैं। और हर 2 साल बाद आप इसे सेम कर सकते हैं। हर 2 साल बाद आप दोबारा 5,000 देगा एक पेड़ आपको, है ना। फिर 10 साल के बाद वो पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको काट के बेच सकते हैं। आपको पता है आज की डेट में एक पेड़ कितने का जाता है चंदन का? लोवेस्ट टू लोवेस्ट टू लोवेस्ट 2 लाख रुपीज। लोवेस्ट टू लोवेस्ट टू लोवेस्ट 2 लाख रुपीज का एक पेड़ जाता है। और मैं तो अभी आपसे वो 5,000 रुपए की बात ही नहीं कर रहा हूं जो वो हर 5 साल बाद, हर 2 साल बाद देता है, उसकी बात भी नहीं कर रहा। आप ये 2 लाख ही पकड़ लो। 2 लाख अगर है तो 600 पेड़ों का कितना हुआ? 12 CR। यानी कि वो 600 पेड़ आपको 10 साल बाद 12 करोड़ रुपए देने वाले। आप ये कह सकते हो कि गोविंद 600 के 600 पेड़ तो बचेंगे नहीं। वेल ट्रू, बिल्कुल सही है। 50% बच जाएंगे तो 300 पेड़ के हिसाब से लगा लो कि 300 पेड़ अगर आपको 2 लाख रुपए देते तो 6 करोड़ की आप बात कर रहे हो। इसके ऊपर छोटी सी बात और बोल देता हूं। आज वो 2 लाख का जाता है ना, 10 साल बाद आप अज्यूम करो कि 3 लाख का तो जाएगा। तो 300 पेड़, 50% पेड़, 3 लाख इज 9 CR। और इसमें जो सबसे मजेदार बात है ना वैभव, वो ये है कि अमृता देवी फाउंडेशन ये पैसे नहीं रखती। करता सब कुछ अमृता देवी फाउंडेशन है। पेड़ भी अमृता देवी फाउंडेशन लगाए, उस पेड़ की देखभाल के लिए भी पैसे अमृता देवी फाउंडेशन दे रहा है। तो देखिए कैसे बनता है डायनामिक्स। जो हमने वो जमीन ली है, वो जमीन हमने 10 फैमिली से ली। पहाड़ों के अंदर आपको एक साथ जमीन नहीं मिल सकती। इसकी वो इसकी वो इसकी वो, तो 10 को रखना पड़ता है। तो 10 फैमिली की जमीन है, पेड़ लगाए हैं उसके अंदर। उनको हर महीने पेड़ की मेंटेनेंस के पैसे जाते हैं, वो मेंटेन करते हैं पेड़ को। और हमने ये बोला है कि पेड़ आपके। अब आप पूछोगे वाई तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, पैसे भी आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आ रहे हैं, बट ना ये भी हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि अमृता देवी फाउंडेशन जाके एक गांव को उठा रही है, पेड़ लगा रही है, उनको दे रही है। ये पर्पस नहीं। पर्पस क्या है, विजन क्या है? मेरा विजन ये है वैभव कि लोग ये देखें कि अगर अमृता देवी फाउंडेशन ये खुद कर सकती है तो आप भी तो कर सकते हो। आपको अमृता देवी फाउंडेशन की जरूरत थोड़ी है पेड़ लगाने के लिए। चंदन का पेड़ 100 रुपए का आता है, आप खुद लगा लो। और पहाड़ों में बहुत जमीन है। सही बात है। और जो हमारे कंसल्टेंट है उन्होंने काम किया हुआ है, उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये पॉसिबल है करना। और आपको जान के बहुत खुशी होगी, जब मैं गया गांव में तो मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारे लोगों ने अब लगाना शुरू कर दिया। अब अमृता देवी फाउंडेशन मांगते नहीं। अब वो किस स्टेज पे आ गए? वो कहते हैं, देखिए 3 स्टेज है। 1, पेड़ अमृता देवी फाउंडेशन लगाता है, देखभाल हम करते हैं, और फाइनली उनको दे देते हैं। अब वो इस पे तो आ गए हैं कि पेड़ आप दे दो, देखभाल हम खुद कर लेंगे, पैसे नहीं मांगेंगे आपसे। मुझे पता है एक दिन इस पे भी आ जाएंगे, और बहुत लोग आ चुके हैं कि वो खुद ही पेड़ खरीदते। जिस दिन ये हो गया तो समझ लीजिए उत्तराखंड एक चंदन स्टेट बन जाएगा। अगर तो चंदन की खेती हो रही होगी। और देखिए एक बार जब ये हो जाता है ना, एक बार चंदन हो गया, उसके बाद ये जो जंगली मुर्गियां होती है, पंक्षी होते हैं, वही दाने को कर करके बहुत जगह फैला देते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि ये स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमें कोई नॉर्मल एनजीओ की तरह नहीं है कि भाई उठाया काम किया, नहीं, वी आर वर्किंग फॉर अ विजन। तो कुछ सॉलिड इंपैक्ट होना चाहिए, नहीं तो हम लोगों के एक्सपीरियंस का क्या फायदा? फिर तो बहुत सारे एनजीओ हैं तो पैसा लेंगे, प्रोजेक्ट लेंगे, खत्म हो गया। इट्स अ विजन दैट वी आर टारगेटिंग। इट्स नॉट अ इजी जर्नी। हमारा 4 साल कंप्लीट हो गए और अभी तीसरा हम एक विंग शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है अमृता देवी वुमेन हेल्थ। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो हम चाहती हैं कि हम वुमेन हेल्थ पे काम करें। जो उनका एक मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होता है, उनके ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम होता है, उनकी न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है, या प्रेग्नेंट वुमेन के साथ प्रॉब्लम होती है। सो वी आर वर्किंग गोइंग टू स्टार्ट ऑन दैट। बट मेरा एक रहता है कि जब तक आप एक चीज को अच्छे से स्टैब्लिश ना कर दो और उसको ऑटो इंजन पर ना चला दो, दूसरी चीज पे हम हाथ नहीं डालते। करेक्ट। तो अभी हमारा वुमेन ऑटो इंजन है, हमारा अर्थ केयर भी ऑटो इंजन है। नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग द हेल्थ केयर, तो उसको चलेंगे। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो फाउंडेशन है, इट इज नॉट, आई डोंट वांट पीपल टू लुक इट लाइक एन एनजीओ, लाइक वी वांट इट टू लुक लाइक अ चेंज एजेंट। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी और सरप्राइज भी होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो ये सब कुछ करना चाहते हैं। लाइक लोगों को लगता है कि यार गोविंद आप क्यों करते हो सब कुछ, क्या मिलता है आपको? और कई बार लोगों को लगता है कि इज देयर अ मॉनेटरी बेनिफिट दैट इज नॉट नोन टू अस। मुझे लगता है लोगों को शायद ये समझ जाना चाहिए कि हर चीज आप पैसों के लिए नहीं करते।
एक एज के बाद, एक लिमिट के बाद आपको नाम चाहिए होता है, आपको अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. शायद हम लोग वैभव, हम लोग उस एज से आ चुके हैं कि शायद पैसा माइट नॉट मेक अस सो एक्साइटेड, बट जो एक आप सोसाइटी को दे सकते हैं वो बहुत है. जैसे आज आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, देखा जाए तो आपने भी और मैंने भी अपना पूरा आधा दिन लगाया आज. क्यों लगाया? आपने भी क्यों लगाया और मैंने भी क्यों लगाया? क्योंकि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि शायद आज की कन्वर्सेशन से हमारी ऑडियंस को कुछ मिल जाए. बिल्कुल सर. That is what gives me a kick. That is what gives you a kick, right? Absolutely. So I think that is the message I want to give to people कि there is things beyond money. और कोई भी ऐसा जो लगता है कि यार ऐसा करना चाहता है, they can get associated with Amrita Devi Foundation. और हमारे पास दोनों लोग हैं वैभव. We have people who are volunteer also, जी. and we have people who are paid. तो करीब 12 से 15 लोग हमारे पास सैलरी पे हैं. 35 लोग अमृता देवी फाउंडेशन में भी वॉलंटियर पे हैं. वाह, वेरी नाइस. जो और लोगों को लगता है कि उत्तराखंड के एनजीओ तो उत्तराखंड के लोग होंगे. नहीं, तो बहुत सारे लोग ही के हैं जो उत्तराखंड के भी नहीं है. बट देयर पर्पस इज टू गिव. एनीवेज वी आर नॉट अ उत्तराखंड एनजीओ नाउ. वी फोकस ऑन उत्तराखंड, बट नाउ वी डू लॉट ऑफ वर्क इन दैट. सो दिस इज द जर्नी ऑफ अमृता देवी फाउंडेशन. और मैं बता सकता हूँ कि विद माय विजन इट विल बिकम वेरी बिग. मतलब 4 साल में हमने जो कर डाला है, आज की डेट में हमको ये चैलेंज आता है ऑनेस्टली स्पीकिंग. फंडिंग प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए. हम किसी के पास मोस्टली फंडिंग के लिए जाते. हम कहते हैं हमें आज ये प्रॉब्लम है कि इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करके इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए. तो वी आर डूइंग प्रीटी गुड आउट देयर, एंड आई होप दैट वी विल कंटिन्यू लाइक दैट. तो मैं कभी रिटायर भी होता, आई विल कंटिन्यू वर्किंग ऑन दैट. बट आई डोंट वांट टू गेट रिटायर, बट हुआ तो आई जस्ट विल इन्वेस्ट माय टाइम इनटू दिस थिंग्स. सर आई एम श्योर कि अभी तो आप बहुत दिन तक रिटायर नहीं होने वाले. द काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव, द काइंड ऑफ विजन यू हैव, और हम चाहते भी नहीं है कि आप रिटायर होइए इतने जल्दी. जिस तरीके से आप इस सवाल का आंसर दे रहे थे और जो एनर्जी थी जब आप इसके बारे में बात कर रहे थे, when you were having that goosebump, we could all feel that energy in this room, and I'm sure, and really a great congratulations, and we really wish you all the very best. ये जो मैथ्स, ये जो इम्पैक्ट और ये जो चेंज एजेंट वाला आप काम कर रहे हैं, अगर ये वाकई सक्सेसफुल हुआ तो मतलब it's gonna change the whole state. मैं वैभव हमेशा कहता हूँ कि मे बी इज नॉट द वर्ड. एक मेरे खुद के स्टूडेंट ने मुझे सिखाया, मेरे स्टूडेंट ने मुझे सिखाया कि आप अपने डिक्शनरी से मे बी वर्ड हटाइए. It's gonna change. It's gonna change. It's gonna change. I'm full confident. Why it will not happen like that. कल को सिचुएशन क्या होती है, किसी ने नहीं देखा. चाहे आप मुझसे किसी के बारे में बात करेंगे, आई विल ऑलवेज से इट विल हैपन. आज तक शायद जो हम कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि कभी मैंने सोचा था कि होगा. देयर वाज अ टाइम वैभव वी यूज्ड टू थिंक यार हमको फंड्स कहाँ से मिलेंगे. टुडे आई एम सेइंग फंड्स इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी. माय बिग प्रॉब्लम, हाउ डू वी कम अप विथ थिंग्स दैट मेक्स इम्पैक्ट. लोगों के लिए फंडिंग समटाइम बिकम्स बिग प्रॉब्लम. हम दूसरी प्रॉब्लम में थी, हमारे पास फंडिंग का भी प्रॉब्लम आज नहीं. तो मे बी इज नॉट द वर्ड. आई एम डेड श्योर इट विल मेक एन इम्पैक्ट. जिस तरह से हम कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं हम करेंगे, और चाहे वो इसमें हो, चाहे चार स्ट्रीम हो, चाहे 3 पिलर में हो. And you have already done it. See the HR success talk. मतलब it has 1.5 lakh number. मैं तो जब ये नंबर बोलता हूँ मैं बार-बार उससे, and you know I love the numbers, what you know, the way you were talking, it was very clear. आपने कितने भी कंजर्वेटिव उससे भी लेके जो नंबर्स आ रहे थे, those were huge, and I'm sure it's definitely gonna happen. और मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी ये देख के, मुझे अगर पर्सनली यहाँ बैठ के और ये बातें सुन के अगर मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यू नो मैं देख रहा हूँ ट्रू सीवी को 10 साल के बाद, वहाँ पे जो हम ट्रू सीवी के साथ एनजीओस के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, आई कुड सी दैट यू नो दिस इज दी जर्नी. तो अगर आपकी जर्नी से मैं इतना मोटिवेटेड फील कर सकता हूँ और कॉन्फिडेंट, एंड आई एम श्योर दैट व्यूअर्स गोना फील द सेम वे. या धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. बातें अभी बहुत सारी हैं गोविंद सर के साथ करने के लिए, बट इस वीडियो को हम यहीं पे विराम करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अभी तक वी हैव डिस्कस्ड हिज जर्नी एंड हाउ ही हैज बिल्ट अ कम्युनिटी विद 1.5 lakh HRs and industry specialists. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट HR functions
एंड इंटरव्यू टिप्स। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अदर जॉब ग्रुप टू हेल्प अदर्स। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।